May I come in, sir? May I come? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Yes. Thank you, sir. रिया रिया अपने बारे में कुछ बताइए। Okay, sir. Sir, my name is Riya Mandanya. I come from Bagh village of Dhar district in Madhya Pradesh. I have done my schooling from my hometown itself, and I have completed my graduation from Government New Law College Indore, and recently I am pursuing LLM from the same college. तो रिया धार से आते हैं, तो धार जब भी धार का नाम आता है तो कंट्रोवर्सी उसके साथ जरूर आती है। आप समझ पा रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? Yes, sir. Dhar भोजशाला की. धार भोजशाला, थोड़ा बताइए धार भोजशाला के बारे में। So Dhar Bhojshala, basically, the controversy regarding Dhar Bhojshala is that there was an ancient temple of goddess Saraswati, that is Lord goddess Vagdevi, and recently there is a mosque built over there. So the Hindu community alleges construction of the temple. At present, Archaeological Survey of India is conducting survey to find out the to carve out the आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसमें बताएं। मैम एट प्रेजेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे चल रहा है वहाँ पर, ये पता करने के लिए कि क्या मंदिर वहाँ पर सच में था या क्या ऐसे कोई हिंदू कम्युनिटी का कोई भी मोन्यूमेंट स्ट्रक्चर था। एट प्रेजेंट इट इज़ ऑन, इट इज़ कंटिन्यूइंग, इट इज़ नॉट एंडेड। रिया एंड आपने एलएलबी कहाँ से किया? सर मेरा एलएलबी फ्रॉम प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट, मैंने एलएलबी किया था, बट आई टुक ट्रांसफर इन सेकेंड ईयर ऑफ माई थर्ड ईयर ऑफ माई BLLB प्रोग्राम to Government New College Indore. And LLM? Sir, LLM, I am pursuing LLM from Government New Law College Indore. In this semester? Sir, at present I am in third semester and second year, yes. फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स बताइए कौन-कौन से थे? Sir, first semester में we had law and social transformation, constitutional law and new challenges, and the third one was comparative criminal procedure and criminology. So न्यू चैलेंजेस क्या-क्या हैं क्रिमिनल लॉज के अंदर? ओके सर। सर क्रिमिनल लॉज में न्यू चैलेंजेस अगर हम देखें तो एट प्रेजेंट वी आर ऑन वे टू इम्प्लीमेंट दी न्यू क्रिमिनल लॉज। सो सबसे पहला तो अगर हम न्यू क्रिमिनल लॉज पे जाते तो सबसे पहला चैलेंज ये आएगा कि इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि सडन वी आर ट्रांसफॉर्मिंग टू द टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड लॉ, एंड पेंडेंसी ऑफ केसेस को के रिस्पेक्ट में चैलेंजेस आने वाले हैं। खैर वो प्रेजेंट भी है पेंडेंसी ऑफ केसेस के रिस्पेक्ट में चैलेंजेस, एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनल लॉज की एट प्रेजेंट आई कैन रिकॉल दिस चैलेंजेस। एंड क्योंकि सब्जेक्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड चैलेंजेस भी था, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या-क्या चैलेंजेस हैं? Practically the country is going on. Secularism is a positive concept or negative concept? The secularism in the Indian perspective is a positive concept. So आपको लग रहा है कि इंडिया में सेक्युलरिज्म प्रॉपर तरीके से चल रहा है? Sir, I don't believe secularism is secularism proper तरह से चल रहा है इंडिया में, but yes, we can move forward. Collectively we can go towards a positive secularism. सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट बताइए सेक्युलरिज्म को लेकर। Okay, sir, landmark judgment of the Honorable Supreme Court with respect to secularism is SR Bommai versus Union of India. प्रियम्बल सुनाइए। Ma'am, preamble states that we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign secular socialist democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of faith, of belief, faith, expression and worship, equality of status and of opportunity, and to ensure fraternity, in order to assure dignity of the individual and unity and integrity of the nation, do hereby enact, adopt and constitute on the 26th day of November 1945 the Constitution of and give ourselves the Constitution of India. फ्रैटर्निटी और इंटीग्रिटी पे आपका क्या कहना है?
Ma'am, fraternity means a sense of brotherhood among people, and integrity is something related to fraternity where the people recognize this sense of brotherhood, where people of different community, different caste, different religions are integrated and believe themselves to be one, believes themselves to be individual of one nation. What is the difference between faith and belief? Faith and belief. Okay. Sorry, ma'am, I'm not able to recall. अच्छा, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हुआ करता था, तो किस अमेंडमेंट से इसको हटा दिया गया, और क्या आपको लगता है प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से इसको फंडामेंटल राइट वापस से बना देना चाहिए? मैम, राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 से हटाया गया था एंड इट बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एंड मैम आई डोंट बिलीव इट शुड बी कंसिडर्ड एज फंडामेंटल राइट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट एज वेल. मैम, राइट टू प्रॉपर्टी अगर एक फंडामेंटल राइट होता है तो फंडामेंटल राइट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट टू इम्प्लीमेंट, एंड अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है एंड इट इज़ नॉट ईजी फॉर द स्टेट टू गारंटी प्रॉपर्टी टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ इंडिया. देयरफॉर दिस इज नॉट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल. ओके, रिया, आज न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, कौन सा पढ़ते हैं? सर, मैं दैनिक भास्कर पढ़ती हूँ. यस. तो आज के न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या थी फ्रंट पेज पर? सॉरी सर, आई डिडंट रीड टुडे. आज तो पढ़ा होगा. नो सर, आई डिडंट रीड टुडे. कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या थी? सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल. सॉरी सर. आजकल आपने देखा होगा मीडिया ट्रायल करके काफी सारी चीजें न्यूज़ में सुनने को मिलती है. आप इसे कैसे देखते हैं? सर, मीडिया ट्रायल देखा जाए तो मीडिया इज कंसिडर्ड एज फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, एंड इट इज़ अलीज्ड कि मीडिया जो है मोर देन रिक्वायर्ड कंटेंट लाती है एंड पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करती है. सो व्हाट आई परस्यू इट एज कि द वॉचर्स एंड द लिसनर्स ऑफ मीडिया शुड बी अवेयर टू अंडरस्टैंड कि क्या, टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज कि कितना सही है एंड कितना गलत है. So, what is required in the present time is public awareness. मीडिया ट्रायल को डेमोक्रेसी के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे? So, क्या हार्मफुल है डेमोक्रेसी के लिए मीडिया ट्रायल? सर, मीडिया ट्रायल के दो पर्सपेक्टिव से हम देखा जा सकता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पर्सपेक्टिव. अगर हम नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखें, जब वो अननेसेसरीली इन्फ्लुएंस कर रही है पब्लिक ओपिनियन को, तो यस, इट इज़ हार्मफुल फॉर द डेमोक्रेसी. हावेवर जब वो गाइड कर रही है इंडिविजुअल्स को, देन इट इज़ अ गुड थिंग फॉर डेमोक्रेसी, फॉर द बिल्डिंग अप ऑफ डेमोक्रेसी. जुवेनाइल एक्ट है, आपको पढ़ा है आपने? इसमें एज डिटर्मिनेशन के बारे में क्या दिया हुआ है? Ma'am, Section 94 of the Juvenile Justice Act deals with the determination of age, and it provides for different methods. First one is कि matriculation जो certificate रहता है, 10th school certificate, that is the basis for determination of age. अगर वो available नहीं रहता है तो म्यूनसिपल रिकॉर्ड्स में भी देखा जा सकता है. एंड द लास्ट वन इज बोन ओसिफिकेशन टेस्ट विच कैन बी हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ द जुवेनाइल, ऑफ द पर्सन alleged to be juvenile. ये एक प्रॉब्लम है मेरी. मैं जब भी घर से ऑफिस आता हूँ, पलासिया स्क्वायर पर कुछ छोटे छोटे बच्चे आके गाड़ी का ग्लास साफ करने लगते हैं. मैं उनको बार बार मना करता हूँ, उसके बाद भी वो मेरी गाड़ी साफ करने लगते हैं. मेरे मना करने के बाद भी जब वो गाड़ी साफ करते हैं और उसके बाद पैसे मांगने के लिए मेरे पास आ जाते हैं. कुछ दिन तो मैंने उनको पैसे दिए, फिर मैंने पैसे देना बंद कर दिया. अब बताइए, क्या यहाँ पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है मेरा पेमेंट करने का? No sir, there is no legal obligation from your side to payment. सर, क्योंकि सर आपने उनको एम्प्लॉय नहीं करा है टू क्लीन द ग्लासेस ऑफ योर कार. दे आर वॉलंटरीली डूइंग, एंड उसके बाद ये सर दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, सो दैट ऑब्लिगेशन अराइजेस. क्या ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? Sir, quasi contract, no sir, this is not a sir, this may be considered. Sorry sir, I'm confused. Sir, can I take a few seconds to complete? अच्छा, ये बताइए, एमपी में कितने जजेस हैं अभी हाई कोर्ट में? Sorry ma'am, I'm not able to recall the number of judges. ओके,
चीफ जस्टिस कौन रहे हैं अभी? सर मैम अभी चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस शील नागू सर अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली। और एमपी के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? सर मैम एमपी में अभी डिस्ट्रिक्ट्स 55 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं मध्य प्रदेश। आप धार से हैं? धार में कितने जजेस हैं? मैम धार में एज फार एज आई कैन रिकॉल देयर आर सॉरी मैम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। ओके। आप कभी कोर्ट गई हैं? इंटर्नशिप की है? आपको क्या अच्छा लगा वहाँ पर? मैम इंटर्न मैम ऐसे मैम कुड यू प्लीज़ एलाबोरेट मैं किस डायरेक्शन में बोलूँ अच्छा अच्छे से। आपको क्या अच्छा लगा इंटर्नशिप में? आप जब जजेस के पास गए हैं, एडवोकेट्स के साथ आपने काम किया है, तो आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? Ma'am, the dedication of advocates as well as the judges to provide justice to the people, to the needy. Advocates are also inclined to provide justice as well as the honorable judges are also inclined to provide justice to the people. That is the best thing I found. सेक्शन 5 ऑफ एसआरए? Ma'am, Section 5 of SRA deals with the recovery of immovable property. सीपीसी 24? Ma'am, Section 24 of CPC deals with transfer of cases. The High Court and the District Court are empowered to transfer the cases. लिमिटेशन 24? Ma'am, Section 24 of limitation deals with public holidays. सीआरपीसी 34? Ma'am, Section 34 of CRPC deals with. Sorry, ma'am, I'm not able to read. कॉन्ट्रैक्ट 16? Ma'am, Section 16 of contract deals with undue influence. 54? Section 54 of the contract deals. Sorry, ma'am, I'm not able to recall. डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? Ma'am, doctrine of frustration finds its place under Section 56 of the Indian Contract Act. Doctrine of frustration means the supervening impossibility to perform the essentials of the contract, and through the because of the impossibility of performance of contract, the contract becomes void. आप डाइस पर हैं, आपके सामने एक बेल एप्लीकेशन आती है, आप किन प्रोविजंस को देखेंगी और क्या क्या चीज़ को आप कंसिडर करेंगी तब बेल देंगी? Ma'am, first of all, I will ensure whether the offence is bailable or non-bailable, and then I will analyze कि क्या I am empowered to impart the bail, and then the offence charged, the conditions of bail. I will make sure to impose the conditions of bail, and the surety. अगर surety आ रहा है तो surety की identity, the property जो surety as a security लाता है, तो उसको analyze करने की क्या ये जो documents of property है ये क्या authentic है या manipulated है, and इन सब चीज़ों को देखते हुए I will. What are the 4 conditions will you impose on that application? Ma'am, the conditions I am going to impose for bail is कि the person is not going to person jurisdiction के बाहर ना जाए, अगर बाहर जा रहा है तो वो with permission जाए. दूसरा, he is not going to commit the further offences, similar offences or further offences, and he is not going to manipulate the investigation. If he will do the same type of offense again, then what is the remedy for the victim, to the victim? What she will do? Just like 354 में उसने ऑफेंस किया था, उसे बेल मिल गया, अभी वापस से उसने 354 किया है, then what is the remedy for victim? Ma'am, the victim victim के लिए तो compensation as a remedy है, and if वो जो concerned person है, he is going to get the enhanced punishment for the subsequent offence. बेल रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं है? Sorry ma'am, I'm not able to recall it. Please. I will read upon it. अपील और रिवीजन में डिफरेंस बताइए. मैम, अपील में सुपीरियर कोर्ट को पावर होता है. अपील इज मोर अ मैटर ऑफ राइट, एंड पर कॉन्ट्रा रिविजन इज मोर अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू एंटरटेन द रिविजन. अपील का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज मोर वाइड. रिविजन इज बेसिकली restricted to the jurisdictional errors by the subordinate court. इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स की रिवीजन हो सकती है? No ma'am, interlocutory orders cannot be revised. एफिडेविट्स को एविडेंस में क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता है? मैम, एफिडेविट्स को एविडेंस में ना लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि एफिडेविट में पर्सन जो है वो ही इज़ नॉट प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट. वो जो भी है वो
मैम ही इज़ नॉट प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, तो द कोर्ट कैन नॉट एनालाइज द कितना सच है और कितना झूठ है. द बेसिक रीज़न बिहाइंड एफिडेविट को एविडेंस में नहीं लिया जाता है. अच्छा, सपोज एक क्रिमिनल नेचर का ट्रायल हो रहा है, ऑफेंस का ट्रायल हो रहा है, उसमें जो एविडेंस की ज़रूरत है उसको कोर्ट में पेश किया है थ्रू द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, चोरी के थ्रू वो एविडेंस लाया गया है, क्या वो एविडेंस को कोर्ट में पेश किया जाएगा? क्या वो एडमिसिबल होगा? मैम जनरली ऐसे एविडेंसेस भी एडमिसिबल होते हैं जो कि इम्प्रॉपर तरीके से लाए जाते हैं, क्यों बेसिक रीज़न कोर्ट का ये रहता है कि एविडेंस आना चाहिए. बट कोर्ट ने वन ऑफ द लीडिंग केसेस ये बोला है कि वी शुड वे कि द मैनर ऑफ टेकिंग एविडेंस और जो एविडेंस की जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, अगर वो मैनर थोड़ा बहुत एविडेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो फिर ऐसे एविडेंस को कंसिडर कर लिया जाता है कोर्ट में. तो ये क्वेश्चन मेरा था, जब मैं पूछ रहा था तभी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था. अक्सर ऐसा होता था कि मेरे फादर जब मुझे स्कूल ड्रॉप करने जाते थे तो वो ट्रेन से जाया करते थे. ट्रेन में ट्रैवल करते करते उनको हल्की सी नींद आने लगती है. एक छोटा बच्चा आता है, उनके बूट पॉलिश करने लगता है. मेरे फादर को पता तो चल रहा है कि कोई कुछ तो कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो थोड़ी बहुत नींद में है तो उन्होंने उसे मना नहीं किया. क्या बूट पॉलिश करने के बाद क्या मेरे फादर के ऊपर कोई सिविल लायबिलिटी बनती है क्या उसको पे करने के लिए? Okay, sir. Sir, as mentioned under the Contract Act, the relations resembling those of the contract. अगर कोई person voluntarily service ले रहा है, then it is his liability to pay सर आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड. उसको उतना अमाउंट पे करने की उसकी लाइबिलिटी बनती है जितनी उसने सर्विस ली है उस पर्सन ने. तो यस, इफ़ द फादर हैज़ टेकन द सर्विस वॉलंटरीली और उन्होंने एक्सेप्ट की है तो उनकी लाइबिलिटी बनेगी, सिविल लाइबिलिटी उनको पे करने की. ये तो दो तीन चीजें हैं. स्पीड बहुत है आपकी. सर मैं पेन डाउन कर लूँ क्या प्लीज़? स्पीड बहुत है, मतलब जस्ट आपको आंसर करना है, थोड़ा आराम से कर सकते हैं, थोड़ा रुक के कर सकते हैं. ऐसा लग रहा है कि आप भाग रहे हो क्वेश्चन के पीछे. क्वेश्चन सुनो, जस्ट आपको आंसर करना है. थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, थोड़ी अपनी स्पीड को कम कर सकते हैं. थोड़ा हेजिटेशन अभी भी है, वो कॉन्फिडेंस अभी नहीं आ रहा है जो एग्जैक्टली होना चाहिए. वो प्रैक्टिस से आएगा और कुछ नहीं. सब्जेक्टिव नॉलेज ठीक है, थोड़ा उसको रिफाइन करने की ज़रूरत है. वो आई थिंक आपकी बुकलेट आपको हेल्प करेगी. इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, तो जस्ट इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करो. दूसरा, क्वेश्चन को पहले सुनो फिर आंसर करो. एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि जो नहीं आता उसके लिए सॉरी. प्लस है इसको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं या फिर इसको नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं. नहीं पता तो सॉरी. ठीक है. आप अटायर यही पहन के जाएंगी? हाँ, साड़ी भी वो पहनना जो आपको कंफर्टेबल हो, है ना. आपके फुटवियर्स भी वो होना चाहिए जो आपको कंफर्टेबल हो. दिन भर आपको वहाँ बैठना है ना. बाकी हेयर स्टाइल अपनी वैसी हो कि हम दिन भर वही ना संभालते रहे हो तो हमें पता चले कि अंदर जाके अनकंफर्टेबल हो जाए, है ना. बाकी आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है. जो स्पीड है बस उसी को थोड़ा कम कर. सुन लो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, है ना. बाकी ओवरऑल ठीक. अच्छा. सर एक चीज़ मेरे साथ प्रॉब्लम आती है कि जैसे आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, अब अगर मुझे उसका आंसर सोचना है तो इट विल टेक समथिंग 5 to 10 सेकेंड. तो मैं उसमें आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन करूँ या मैं उसमें कैसे पॉज लूँ, वो मुझे समझ नहीं आता है. क्या होता है सर कि तो क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी आना चाहिए. ये टाइम लग रहा है, इसका मतलब रिकॉल करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कॉन्सेप्चुअली वहाँ एक प्रॉब्लम है, तो वो हमें ठीक करना चाहिए. दूसरा, नॉर्मली जब हम क्लासरूम में कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम जैसे आंखों को ऊपर करते हैं, फिर 2 मिनट रिकॉल करते हैं, फिर आंसर करते हैं. यहाँ ऐसे तो अगर हम रिकॉल भी कर रहे हैं तो जस्ट हमें आई कांटेक्ट खत्म नहीं करना है, वो बना है. क्योंकि अगर आपने वो खत्म कर दिया इसका मतलब फिर आप किसी और ही जोन में चले गए, फिर आप यहाँ तो नहीं है. इसको मिस नहीं करना है. अगर ये कनेक्टिविटी मिस हुई ना, बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएगी. तो एक बार जो कनेक्शन बनना स्टार्ट होता है वो कनेक्शन बनता है. इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो आपको 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम रिकॉल करने में लग रहा है, ये तब पूरा होगा जब आप आंसर बहुत आसानी से करोगे. प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, आप आंसर बहुत स्पीड में कर रहे हो,
फिर आप 2 या 3 सेकंड का पॉज अगर लोगे सोचने में, तो हमारे लिए फिर बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो जब उसको मैनेज करने की कोशिश करो, अगर वो कोऑर्डिनेशन थोड़ा प्रॉपर हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। आंसर्स की स्पीड को कंट्रोल करो, ठीक, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन है आपका? Not yet, sir. This one. Thank you, sir. ऑल द बेस्ट। All the best. Good luck.